Hello students, welcome to this lecture. Today we are going to discuss about the basic things, that is the difference between mass and weight. We will discuss about what is mass, what is weight, what is the interlinkages between mass and weight, and what is the difference between mass and weight. In this lecture we are going to discuss briefly, or we can say in explanatory form, that is what is density, what is volume. Okay, so we can use these terms and these concepts to find out the mass and weight linkages and differences. So first of all, if we talk about the mass, so if we analyze and if we know the formula of mass, we can easily categorize what is mass. So do you know the formula of density? Density equals to mass upon volume. Here mass and volume. So volume is in the division part, so we can use this is a multiplication part, that is if we categorize and if we interchange the in equals to part, so we can use mass equals to density into volume. Okay, density into volume, यानी मास को हम क्या कह सकते हैं, घनत्व, और ये हमारा आयतन है. ठीक, तो मास द्रव्यमान होता है ऐसे, तो ये हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं. एंड फर्दर वी कैन क्लासिफाई density and volume. So first of all we have to understand what is the meaning of density and what is the meaning of volume before to analyze and before to understand the overall concept of mass. Okay, so first of all we talk about density. सबसे पहले density के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो density क्या होता है इसको आपको ध्यान से समझना है. What is density? So density equals to mass into volume by formula. By formula it can be mass into volume. So if we talk about, if we put any object here, that is A. Okay, this is object A, and if we talk about the structure formula and the structure behind this, this is in the form of like cuboid structure. Okay, and if we talk about the rectangular part, that is in the rectangle form. So if we talk about the area of rectangle, what is this? Length into breadth. Okay, so length into breadth, we can find the area, and the overall volume, that is if we have to find out the cylinder volume, we can find the pi r square. First of all we have to multiply pi r square into x, because we know that the cylindrical form is in the form of circular part and there is height behind this. So we have to multiply pi r square into h to find out the overall volume of the cylinder. Okay, so what is density? So if we talk about the any structure, we are using three structure here. So first of all is solid, the other is liquid, and the third one is gas. Okay, so there are three types of metals here. So do you know what is solid? So in solid we can use the inner molecular particles, that is the distance between inner molecular particles is slightly packed. Okay, so there is a very small distance between two inner molecular particles. So first of all if we talk about two inner molecular particles, that is in the solid, so if we use these type of things, that is marker, these are of, like you can say, first of all use this, you can say if we use, these are of tightly packed. Okay, so there is a very small distance between each of these. Okay, these are of tightly packed. If we talk about liquid part, the distance between is little bit higher, so that is the distance. And if we talk about gas, that is the distance. I am assuming this. Okay, so if we talk about the solid part, that is the inner molecular distance between solid two particles is slightly we can say packed. Okay, so there is less distance between two inner molecular particles. Okay, so first of all we know that the inner molecular particle distance is small. Okay, and it is slightly packed, so we can say slightly packed or fully packed. It can be categorized. Like solid we can categorize into two parts, that is amorphous solid and crystalline solid. So if we talk about amorphous solid, that is rubber. So in rubber we can
use slightly packed structure that is there, and if we use the crystalline part that is diamond, there is a very high density that is there, because the inner molecular particle distance is very little, very slow. Okay, so this is slightly packed. So these are called amorphous solid and crystalline solid. So in the solid part we can use these things. Okay, the distance between is slow, or we can say a little. And in liquid part, the distance between two inner molecular particles is larger than solid. The distance between two particles is larger. Okay, you know, the distance between these two particles are larger. Is this means the density is higher? No, not at all. Because the density relates to how particles are tightly packed with each other. If the particle distance are higher, then that means the density of these particles will be low. If we talk about the gas, the overall density, the overall distance between two particles of the gas is higher than solid and liquid. Okay, सॉलिड और लिक्विड से गैस में दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था इस दो मार्कर का. सपोज कीजिए दो मार्कर बिल्कुल पास में है, तो वी कैन से दैट इज इन द सॉलिड पार्ट बिकॉज द इनर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज टाइटली पैक्ड. ओके, so if you increase the distance between two part, that is if you increase the distance, we can say this is liquid part. I am assuming this is this not a liquid. I am assuming this. Okay, and if you talk about the other part, that is gas, so we can say the distance between gas is higher. Okay, so what does this mean? The tightly packed nature, this means the distance between particles is higher and they are higher than these two. Okay, so यहाँ particles बिल्कुल चिपके होते हैं, यहाँ थोड़ी दूर, यहाँ बहुत दूर. ठीक है. Is there any difference between the sizes of the particles of these three terms, these three matters? Depend. Okay, first of all, if we talk about the you can say water, so if you freeze the water, the inner molecular distance in the solid part is low, inner molecular distance is in liquid part is slightly greater than solid, and in gas slightly greater than solid and liquid. But if we talk about the size and dimension of the molecules that is there, that is the water, that is H2O, it can be categorized into H plus and OH negative. So if we talk about the overall volume of H positive and OH negative, is there any changes in the dimension of this? So it depends. Like in solid, if we talk about the particle distance, that is the bonding, the bond length between these two particles, that is H positive and OH negative, the bond length between these two particles becomes small in solid part. That is the distance, we can say, we can assume H2O like H plus and OH negative, H plus OH negative. Okay, H plus OH negative, that is tightly packed. If we talk about here, H plus OH negative, H plus OH negative, and if you talk about H plus OH negative, H plus OH negative. Okay, so the bond length between these two terms is tightly packed. The bond length between these two terms are a little bit higher than solid, and the bond length between these two terms are slightly higher than solid and liquid. Okay, so is there any dimension problem? No, not at all, because it depends upon the bond length. Bond length is nothing but the distance between the two particles, that is in the form of H positive and OH negative. Okay, so here we can say the distance between is low, so it is solid. Okay, means if the bond length, if we say the distance is higher, distance if low, that means density will be higher. अगर डेंसिटी ज्यादा होगा इसका मतलब है कि वो पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड हैं, आपस में चिपके हुए हैं. ठीक है. अगर मान लीजिए पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, यानी दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि उसका डेंसिटी इसके डेंसिटी से कम हो गया. डेंसिटी का कुछ और मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है कितना घना है, कितना टाइटली पैक्ड है. अगर कोई वस्तु ज्यादा टाइटली पैक्ड है तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, इसको आपको याद रखना है. जैसे मान लीजिए मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ. If you talk about these two markers, if the distance between these two markers are let's say 1 centimeter, okay,
and in another term that is 2 centimeter. So डेंसिटी किस में ज़्यादा होगी ये बताइए। 1 सेंटीमीटर है तो एक 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ यानी कि डिस्टेंस इन दोनों के बीच का बढ़ गया, यहाँ पे कम था, यानी यहाँ थोड़े से टाइटली पैक्ड है तो यहाँ पे डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैंने बात की ये सारे पाँचों एक साथ हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अगर मैं इन सबको पिघला के एक आकार बना दूँ, एक मार्कर बना दूँ इन सबको पिघला के, ठीक है, मेल्ट करके, तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि इन सभी को पिघलाकर एक आकार में बनाया गया है। जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन क्या है, वो एक सॉलिड फॉर्म में, वहां पर क्या होता है बॉन्ड लेंथ यानी कि डिस्टेंस जो होता है दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होता है, इसका मतलब डेंसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जितना कोई वस्तु भारी होगा, ठीक है, द हैवियर द ऑब्जेक्ट इज द डेंसिटी विल बी मोर, जितना भारी होगा वस्तु उसका डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा, याद रखना है। ठीक है, जैसे रुई और लोहे में, ठीक है, कौन सा डेंसिटी ज्यादा होगा, किसका, लोहे का, ऑब्वियस बात है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा दूर है, तो इसका मतलब डेंसिटी कम, तो डेंसिटी ज्यादा तो डिस्टेंस कम होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है तो डेंसिटी इससे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है डेंसिटी पे, तो जैसे मान लीजिए इसमें हमें टेम्परेचर दूं, तो इफ वी यूज एंड इफ वी पुट द टेम्परेचर ऑफ दिस सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो क्या होगा, यहाँ से जो पार्टिकल्स है रेडिएशन जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये रेडिएशन हीट के फॉर्म में जाएगा, और जो दो पार्टिकल थे, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल चिपके हुए थे, ठीक है, यहाँ से हीट गया, ठीक है, जब हीट जाएगा तो ये क्या करेगा, इन पार्टिकल्स के ऊपर धक्का लगाएगा, ठीक है, इट पुशेस अवे, बाहर की तरफ फेंकेगा, धक्का लगाएगा, तो क्या होगा, इन पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, so the kinetic energy of these particles will be increased by applying heating effect। जब हीट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये जो एनर्जी, ये जो पार्टिकल्स होगा दूर दूर भागने की कोशिश करेगा, बोलेगा मुझे भी जाने दो बाहर। ठीक है, तो एक दूसरे से बाहर जाएगा। कुछ ऐसा मान सकते हैं कि जैसे आप कमरे में हैं सबके सब, ठीक है, सपोज कीजिए आप 10 आदमी हैं कमरे में और उधर से कोई मास्टर आते हैं या टीचर आता है, या सपोज कीजिए आप दोस्त में हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, वो आप 15 आदमी इस घर में हैं, ठीक है, और आपका खा रहे हैं पी रहे हैं मौज मार रहे हैं, बाहर से कोई एक लड़का आया, वो उसको आपने पीटा था पिछले दिन, तो वो आया और आप लोगों को देख लिया, ठीक है, और वो काफी ताकतवर है समझिए, ठीक है, वो अंदर आया और वो फटाक से यहाँ से छिटकने लगा दिया, डोर का बंद कर दिया, और हाथ में उसने एक लोहे का रॉड ले रखा है, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा आप लोगों का रिएक्शन होगा या तो आप मारेंगे उसे, ठीक है, या आप यहाँ से भागेंगे, है ना, दूसरे रास्ते से भागेंगे। तो वहां पर क्या, आप लोग जो बिल्कुल साथ में बैठे हुए थे, एक बाहरी इफेक्ट, यानी बाहरी इफेक्ट क्या है, वो लड़का, यहाँ पर बाहरी इफेक्ट क्या है, ये हीट, उसके आने के कारण वहां पर जो लोग थे, जैसे आप लोग थे, वो भाग गए, इधर उधर हो गए, वैसे यहाँ पार्टिकल्स भी एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो जैसे ही भागेंगे या दौड़ेंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा चेंज। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी हो रहा है चेंज, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम गर्मी देंगे तो यहाँ पर ये वस्तु क्या होगा, टेम्परेचर देने पर दूर दूर जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लीजिए ना, सॉलिड में मान लीजिए आइस है, ठीक है, बर्फ है, बर्फ में अगर हम गर्मी देते हैं, यानी कि इफ यू पुट टेम्परेचर ऑन द आइस पार्ट, क्या होता है, बर्फ पिघल जाता है, तो बर्फ सॉलिड में था लिक्विड में चेंज हो गया। कैसे हो गया, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए ये जो हीट था, एक्चुअली में होता क्या है ना, देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए ये था आइस, आइस के पार्टिकल्स हैं और आइस में थोड़ा सा वैक्यूम पार्ट होता है, ठीक है, छोटा सा वैक्यूम पार्ट मान लेते हैं हम, ठीक है, ये आइस था। अब जैसे ही मैंने यहाँ से टेम्परेचर दिया, ठीक है, टेम्परेचर देते ही ये टेम्परेचर क्या है, रेडिएशन के फॉर्म में इधर से गया और ये इसके पास आके टकरा गया और इसके साथ चिपक गया समझिए, या इसको धक्का दे रहा है, कहीं कहीं धक्का दे रहा है। ठीक है, तो जैसे ही चिपका तो इस पार्टिकल को वो क्या करेगा, चारों तरफ से घेर रखा है, तो इसको पिघलाने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसको खत्म करने की कोशिश करेगा। या ये हो सकता है कि ये जो गर्मी थी ये पार्टिकल ले ले, जैसे ये पार्टिकल है और ये चारों तरफ की गर्मी ले लिया और इसका टेम्परेचर मान लो पहले मान लो 10 केल्विन था या 10 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है, इतना था। अब ये टेम्परेचर इधर से लिया 15 डिग्री एक्स्ट्रा, तो आप कितना हो गया ओवरऑल इसका 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ध्यान से समझिए, अगर कोई वस्तु, इफ एनी ऑब्जेक्ट have the tendency or have the capacity
to melt in 25 degrees Celsius or below 25 degrees Celsius, then the object will be melt. And if the melting point of this is greater than 25 degrees Celsius, the object will not be melt. यानी कि अगर 25 डिग्री से कम डिग्री तापमान होगा, यानी कि अगर मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट 30 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए पिघलना था और उसको टेम्परेचर अभी कितना मिला है 25, तो वो वस्तु नहीं पिघलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट विल नॉट बी मेल्ट। लेकिन अगर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना था, उसको 35 मिल गया 35, तो ऑब्जेक्ट पिघल जाएगा, देन ऑब्जेक्ट विल बी मेल्ट। सेम एज फॉर आइस, जो हमारा बर्फ है उसको क्या है, जब तक गर्मी मिलेगा वो गर्मी से क्या करेगा, वहां पर इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इस ऑब्जेक्ट ऑल द रेडिएशन दैट इज देयर, ठीक है, एंड outermost layer of the radiation part that is there will affect the inner molecular particle distance that is radiation part। ओके, सो इसका जो अंदर वाला पार्ट है उसको वो क्या करेगा, चेंज करेगा। तो एक पार्टिकल अंदर में जो है उसके ऊपर जब अगर मान लो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु के चारों ओर मैं आग लगा दूं, तो इस वस्तु के बीच में क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका एक तो ये हो सकता है ये जल जाए, एक हो सकता है इस पे दबाव पड़े पिघल जाए, ठीक है, एक हो सकता है मेल्ट हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है, यही सब इफेक्ट होगा, यानी कि ओवरऑल इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि ये सॉलिड से लिक्विड में हो जाए, डेंसिटी कम हो जाए, कंडीशंस है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा दे दिया हूं तो वो पिघल जाएगा वस्तु, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, एज फॉर कंडीशन लिक्विड टू गैस आल्सो, ठीक है। तो ये होता है ये क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब और कुछ नहीं, कितना घना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, ये मान लो इट इज अ फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और यहाँ एक दूसरा एरिया लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर हम एक दूसरा एरिया ले रहे हैं, ये इसका यहाँ से यहाँ तक का मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। एक दूसरा क्षेत्रफल ले रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे पेड़ थे, यहाँ 2 पेड़ हैं, ओनली 2 ट्रीज आर देयर, and the distance between this is 1 kilometer square, case 1, okay, case 2 is this, same diagram will be there, and if we increase 2 kilometer square, sorry 1 kilometer square में है 10 पेड़, 10 tree, and if we talk about 1 kilometer square 20 tree, ठीक है, ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, एंड थर्ड केस इज केस 3। इफ यू टॉक अबाउट 1 किलोमीटर स्क्वायर 0.5, तो 1 ले लेते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर 15 ट्री 15 ट्रीज, एंड 0.5 किलोमीटर स्क्वायर 50 ट्री, ठीक है। केस 4 0.5 किलोमीटर स्क्वायर 1 ही मानते हैं, चलिए 1 किलोमीटर स्क्वायर 20 ट्री, 2 किलोमीटर स्क्वायर 20 ट्री, 30 ट्री, 30 ट्री। सो दैट इज ऑल द केसेस दैट इज देयर। सो आपको बताना है कि इसमें डेंसिटी ज्यादा होगा। पहले वाले रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना है 1 किलोमीटर स्क्वायर, here also 1 किलोमीटर स्क्वायर इज देयर, सो द एरिया इज सेम, ओके, एरिया से में यहाँ पर देखिए, मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ 2 ट्री है, 2 पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ 2 ट्रीज हैं, और यहाँ कितने मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ट्रीज आ गए। सो 1 किलोमीटर सपोज कीजिए ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने हैं 2 हैं, यानी कि 2 यहाँ पार्टिकल्स में बना देता हूँ सपोज समझने के लिए। यहाँ पर कितना 1 किलोमीटर है, यहाँ पे कितने पेड़ पौधे हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब बताइए डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा हो गया सर, क्योंकि पार्टिकल्स ज्यादा आ गए इस पूरे क्षेत्र में, चूंकि एरिया सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पार्टिकल्स ज्यादा है या पार्टिकल्स कम है, सो डेंसिटी विल बी हायर हियर एंड डेंसिटी विल बी लो हियर, यहाँ ज्यादा डेंसिटी होगा। ये बात समझ आ गया। अब देखिए दूसरा पार्ट, 1 किलोमीटर में 10 पेड़ है, यहाँ 1 किलोमीटर में 20 पेड़ है, एरिया सेम है, पेड़ ज्यादा है यहाँ ट्रीज ज्यादा है, यहाँ कम है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 15 ट्री है और यहाँ 0.5 किलोमीटर स्क्वायर में 50 ट्री है। अब बताइए किसका डेंसिटी ज्यादा है। हियर एरिया इज डिफरेंट, ठीक है, तो हम क्या करना है, हमें हमने जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम।
ठीक है, यहाँ मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक, इसका मतलब ये हमारा मास है 15 और ये वॉल्यूम है 8, तो 15/1 इक्वल्स टू 15। अगर यहाँ बात करें 0.50 अपॉन में 0.5, दैट मेक्स 500 अपॉन में 500, यानी कि यहाँ पर 100 और यहाँ पर कितना आया 15, यानी 1 किलोमीटर में अगर 15 ट्री है, खुद सोचे 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 15 ट्री है, और यहाँ आधा किलोमीटर में 50 ट्री है। 1 किलोमीटर में 15 ट्री है, यहाँ आधा ही किलोमीटर में 50 ट्री है, तो आधे किलोमीटर में 50 ट्री है, तो 1 किलोमीटर में कितना होगा डबल 100 ट्री, यानी 1 किलोमीटर में 15 ट्री, यहाँ 1 किलोमीटर में 100 ट्री हो गए, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ऑब्वियस सी बात है, यानी कि ये नंबर ज्यादा हो गया डेंसिटी। इसमें देखिए 1 किलोमीटर में 20 ट्री है, यहाँ 2 किलोमीटर में 30 ट्री है, किसका डेंसिटी ज्यादा है, कैंसिल करके 120 20 और यहाँ 2 15 30, तो 20 और 15 किसमें ज्यादा है, 1 किलोमीटर में 20 ट्री, यहाँ 1 किलोमीटर में 15 ट्री, 20 वाला ज्यादा है, यानी डेंसिटी विल बी हायर। ये बात आपको समझ आ गया। तो ये है डेंसिटी का खेल, ठीक है, आपको डेंसिटी पूरा मैंने क्लियरली समझा दिया है डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी का सीधी सीधी मतलब है कितना टाइटली पैक्ड है कोई वस्तु, कितना भारी है, सीधी सी बात है, ठीक है, कितना भारी है, कितना हैवी है। इफ द ऑब्जेक्ट इज हैवी देन द डिस्टेंस द डेंसिटी विल बी ग्रेटर, ओके, एंड इफ द इनर पार्टिकल डिस्टेंस इज स्मॉल देन आल्सो द डेंसिटी विल बी ग्रेटर। इसको याद रखना है। अगर प्रेशर बढ़ाएं, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं कोई ऑब्जेक्ट के बीच में तो क्या होगा, सपोज कीजिए यहाँ पर हमने प्रेशर बढ़ाया, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मान लो इतना वॉल्यूम था, इसके ऊपर मैंने प्रेशर दिया, प्रेशर देने से क्या होगा, इसका ओवरऑल लेंथ यानी कि शेप चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मान लो 10 पार्टिकल्स थे, सपोज करो 9 पार्टिकल्स है, 10 पार्टिकल्स आर देयर एंड यहाँ यही 9 पार्टिकल्स बिल्कुल चिपक गए, ठीक है। तो हुआ क्या, देखिए 10 पार्टिकल्स इज देयर, सो ऐसे करके हमने 8 पार्टिकल्स मान लो बना लेते हैं। यहाँ मान लो यही 8 पार्टिकल्स को बिल्कुल पास बनाते हैं, क्योंकि इसका पहले शेप ऐसा था, अब यही शेप इतना हो गया प्रेशर अप्लाई करने से, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने से। इसे मान लो ये एक वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं, अभी देखो इसका एरिया इतना है तो प्रेशर इतना है, अब इसको मैं छोटा कर रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं और छोटा कर रहा हूं, और प्रेशर लगा रहा हूं और छोटा कर रहा हूं, इसको और प्रेशर लगा कर और छोटा कर दूंगा, तो ये जो है ना और प्रेशर लगाऊंगा और छोटा हो जाएगा। इसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट इसका क्या मतलब है कि इसका जो अंदर में पार्टिकल्स क्या वो निकल गए, नहीं, वो इसी के अंदर है, बट वो शेप जो है वो चेंज हो गया है। तो शेप चेंज होने से क्या हो रहा है, इसके पार्टिकल्स बिल्कुल चिपक रहे हैं, तो यहाँ पर यही केस हो रहा है, पार्टिकल्स चिपक रहे हैं। तो पार्टिकल्स चिपकेंगे इसका मतलब क्या है, देयर इज अ वेरी लेस डिस्टेंस बिटवीन दिस द टू पार्टिकल्स, यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, सो दिस मेक्स हाईली डेंसिटी, बिकॉज क्या है यहाँ पार्टिकल्स द ओवरऑल लेंथ ऑफ द पार्टिकल बिटवीन टू पार्टिकल डिस्टेंस इज स्मॉलर, सो द डेंसिटी विल बी हाई। यहाँ लेंथ ज्यादा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ डेंसिटी होगा कम, यहाँ डेंसिटी हो जाएगा ज्यादा। तो याद रखना प्रेशर अप्लाई करने से डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन हमने देख लिया, टेम्परेचर अप्लाई करने से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती है घटती है, याद करिए, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, दूर दूर भागेगा, दूर दूर भागेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी घट जाएगी, और वहीं अगर टेम्परेचर घटा दें तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, पहला कंडीशन। दूसरा, प्रेशर अगर इंक्रीज कर दें तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर द डेंसिटी इज ग्रेटर, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। इफ यू डिक्रीज द प्रेशर डेंसिटी विल बी स्मॉलर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो और किसका इफेक्ट पड़ता है, मान लीजिए एक्सटर्नल सराउंडिंग्स का इफेक्ट पड़ेगा क्या, तो हाँ पड़ सकता है, डिपेंड करता है वो भी टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चीज इसके ऊपर आकर टकराती है तो उसका मतलब प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसका मतलब वहाँ डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर वस्तु दूर जाती है तो टेम्परेचर इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना आपको। चलिए, एरिया अगर बढ़ जाएगा तो, एरिया बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, यहाँ एरिया अगर कम कर दे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये याद रखना है। ठीक, तो ये डिफरेंस हो गया डेंसिटी का, पूरा ओवरऑल एनालिसिस कर लिया हमने, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, और भी चीजों का इफेक्ट होता है, बट आपके जो क्लास पे है वो इस लेवल तक ही है, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए आगे इसको रख सकते हैं। अब हमने समझ लिया डेंसिटी, अब क्या वॉल्यूम समझ ले, वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम समझ लेते हैं इसमें, वॉल्यूम। और ये वाला जो चीज है, ये मैं अगले लेक्चर में आपको मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, बिकॉज इससे क्या है, लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। तो वॉल्यूम अभी समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में मास और वेट उसका डिफरेंस बताऊंगा और उसकी सिमिलरिटी भी बताऊंगा। तो वॉल्यूम क्या देखिए, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सिलेंड्रिकल था, तो सिलेंड्रिकल में क्या है, ये पाई आर स्क्वायर इनटू एच, इसमें पाई आर स्क्वायर एच, क्या वॉल्यूम हो गया 2lv प्लस bh प्लस hl। ठीक है, यहाँ लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट lbh। ठीक है, ये हो गया lbh, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो ये क्या है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, in any object what is the length, what is the breadth and what is the height of this object. If any object occupies some distance, that is some length, some breadth and some height, so if we product all these things, that makes us give a volume. Volume is nothing but space occupied by any object. जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है मार्कर, ये मार्कर इतना ऑब्जेक्ट स्पेस, इतना ये जो जगह दिख रहा है आपको, ये एरिया, ये स्पेस इसने ऑक्युपाई कर रखा है। अब सपोज करो हमारे पास जगह है कम, इफ यू हैव दिस मच ऑफ स्पेस, सो वी कैन राइट, वी कैन यूज ऑल द मार्कर्स हियर, यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं इस जगह को कम कर दूं और कम कर दूं, ठीक है, और कम कर दूं, सपोज करो जगह इतना बना दूं, तो इतने में सपोज करो, या और छोटा कर दूं इसको, ठीक है, बहुत छोटा कर दूं मैं, ठीक है, इतना कर दूं। अब इस पे मैं एक मार्कर रखा, दो मार्कर रखा, तीन मार्कर रखा, ठीक है, तीन मार्कर रखा या चार मार्कर रखा, मान लो बढ़ गई जगह। अब ये कहाँ आएगा, ठीक है, अब ये मत बताना यहाँ आ जाएगा, ये इस तरफ से हम देख रहे हैं, ये कहाँ आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज जो स्पेस था इतना, वो स्पेस ऑक्युपाइड कर लिया इस चार मार्कर ने। तो ये जो स्पेस था जो ऑक्युपाइड कर रहा है ये मार्कर, तो ये इस क्षेत्र का, यानी इतना एरिया जो ऑक्युपाइड किया, देखिए इतना एरिया जो ऑक्युपाइड किया ये जगह, ये इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो उसका वॉल्यूम में होता है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों का प्रोडक्ट ही होता है वॉल्यूम। कितना जगह ले रहा है एक वस्तु, सपोज कीजिए एक वस्तु है, ठीक है, ये फोन है, ये फोन कितना जगह ले रहा है, मान लीजिए यहाँ से देखते हैं, ये फोन हमारा इतना जगह लिया, ठीक है, इतना जगह ले लिया, तो ये फोन जो है हमारा, ये पूरा एरिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ये वॉल्यूम है। यानी कि देखिए अगर हम ऐसे देखें तो दीज आर कॉल्ड लेंथ, दीज आर कॉल्ड ब्रेथ एंड इट इज कॉल्ड हाइट, इट इज कॉल्ड हाइट, दीज आर ब्रेथ। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन है। और अगर ये इसको हम रेक्टेंगल माने तो ये लेंथ है एंड ये ब्रेथ है। सो इफ यू मल्टीप्लाई, इफ यू प्रोडक्ट द लेंथ एंड ब्रेथ, वी गिव द एरिया, हमें एरिया मिल जाएगा, विल गिव एरिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है बता दिया, वॉल्यूम क्या है बता दिया। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है बताया आपको। तो अगर मास निकाला जाए इसी से तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम निकल जाएगा, यानी कितना ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स चिपके हैं और कितना जगह ले रखा है ना, कितना जगह ले रखा है, यानी व्हाट टाइप ऑफ, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन दिस एंड हाउ मेनी वॉल्यूम डज इट ऑक्युपाई। ठीक है, कितना जगह, ठीक है, वो स्पेस लिया है। इफ वी प्रोडक्ट दीज टू टर्म्स देन वी कॉल्ड अ मास इज दिस। ठीक है, वो मास है, यानी मास का मतलब होता है कितना उसका डेंसिटी है, हाउ टाइटली पैक्ड द मॉलिक्यूल्स बिटवीन दो टू इनर मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स। और इफ यू कैन से इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ मार्कर, यहाँ पर ये मार्कर जो है इसके बीच में जो पार्टिकल्स है, इफ द पार्टिकल्स, इफ यू सी द पार्टिकल्स बिटवीन दिस, सो दीज आर ऑल टाइटली पैक्ड, so it is the density, so it is the density okay, so density। और ये कितना जगह लिया है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सब वॉल्यूम कहलाएगा। if you product these two terms then we can call it as mass।
ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इतना कवर कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, व्हाट इज वेट, we can elaborate mass further, and we can use the interlinkages between mass and weight and the other things or examples like that. We can use all those things to understand you in a better way. So if you like this video, make sure that you can subscribe this channel, like and share this video as per your choice, and पढ़ते रहना है, ठीक है, रिवीजन करना है, and if you don't understand any concept, let me sure that कमेंट में आपको मैसेज करना है, ठीक है, कमेंट में मैसेज करना है, बताना है आपको, ठीक है।